Hello students, this is lecture number 16 on topic magnetic effect of electric current. In today's lecture, let us discuss some numericals based on the formula. पहला formula है force acting on the conductor carrying the current and kept in magnetic field. Force होता है I, L, B sin theta, where L is the length of conductor, I is the current passing through the conductor, B is the magnetic field into which conductor is kept, and theta is angle between the current and magnetic. Torque acting on the conducting loop carrying the current and kept in magnetic. अगर हम लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल या सर्कुलर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज एन आई ए बी साइन थीटा, where n is the number of turns of the coil, I is the current passing through the coil, A is the area of coil, B is the magnetic field, and theta is angle between area vector and field vector. area vector plane of the coil को perpendicular रहता है. For a moving coil galvanometer ये तीन फॉर्मूले हैं. This is the deflecting torque, this is restoring torque, दोनों इक्वेट करो. Angle of deflection is NAB upon K into I. N number of turns of the coil, area of the coil, magnetic field of induction. ये टॉर्क कांस्टेंट या टॉर्सनल कांस्टेंट है वो सस्पेंशन फाइबर का जो हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था. I is the current passing through that coil. Now magnetic potential energy. अगर coil suspended in magnetic field rotates from initial angle theta 1 to the angle theta 2, then work done to rotate that coil to change its position from theta 1 to theta 2 is converted to energy. That energy is called as magnetic potential energy, and it is given by a formula mb cos theta 1 minus cos theta. यह है formula force per unit length. Force per unit length. ये रहेगा force acting on one conductor out of the two. यहाँ F2 लिया तो भी चलेगा. दो कंडक्टर होते हैं. Current passing through one conductor is I1. Current passing through the other conductor is I2. What is the force acting on either conductor is same in magnitude, but directions of force acting on those conductors are according to the current passing through them. The current passing through both the conductors parallel to each other is in the same direction. They attract each other, and if the current is passing through them in opposite direction, they repel each other. Okay, इससे related numericals देखते हैं. A circular coil of conducting wire has 500 turns. एक circular coil है conducting having 500 turns and area of the turn is 1.26 10 raised to minus 4 meters square. Is enclosed by the coil. कितना area coil का है. A current of 100 microampere pass through the coil. Calculate the magnetic moment of the coil. Calculate magnetic moment of the coil. आंसर है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन आई ए. एन है 500, आई 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 ये एम्पियर हो गया. ए 1.26 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 ये हो गया एरिया ऑफ द कॉइल. ये वैल्यू प्रिसाइज कर लो सिंप्लीफिकेशन से. ये आएगा 6.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर. Second, next one. A moving coil galvanometer has been fitted with the rectangular coil of 50 tons and dimensions 5 into 3.
रेक्टेंगुलर कॉइल है 500 टर्न से, उस कॉइल का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक दूसरा साइड लेंथ यानी ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टन का, ऐसे 50 टन से। A radial magnetic field in which coil is suspended. Magnetic field into which it is suspended is 0.05 Weber per meter square. The torsional constant of the spring is 1.5 into 10 raised to minus 9 Newton meter per degree. ये torsional constant है K, suspension fiber का. Obtain the current required through the galvanometer so that deflection of the coil is 30 degree. तो कॉइल का डिफ्लेक्शन थ्रू 30 डिग्री होने के लिए व्हाट करंट शुड बी पास थ्रू द कॉइल, ये आपको फाइंड आउट करना। तो फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉर्मूला है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज NAB अपॉन K इंटू I। सिंस I इज एक्सपेक्टेड, तो I के लिए राइट हैंड साइड आएगा K थीटा K फाई, ये वाला अपॉन NAB। थीटा फाई कितना है 30 डिग्री, K कितना है 1.5 10 raised to minus 9, here it is given। ध्यान रहे ये डिग्री में है, K का वैल्यू डिग्री में है तो एंगल भी डिग्री में सब्स्टिट्यूट करने का। अगर ये रेडियन में होता यहाँ पे तो हम लोग 30 डिग्री की जगह π/6 सब्स्टिट्यूट करते। यूनिट्स पे ध्यान दो, टॉर्सनल कांस्टेंट का यूनिट है 1.5 इंटू 10 raised to minus 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। ये पर डिग्री है इसलिए हम लोगों ने एंगल को डिग्री में सब्स्टिट्यूट किया। अगर ये पर रेडियन होता तो हम लोग एंगल को 30 डिग्री को रेडियन में सब्स्टिट्यूट करते, यानी π/6 सब्स्टिट्यूट करते। यूनिट बैलेंस होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द टर्न एंड मैग्नेटिक, ये सॉल्व करना। सॉल्व हो जाएगा। ये 15 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, राइट। सब सिंपल नंबर है, 10 पावर कलेक्ट करो और बाकी पार्ट सॉल्व करो। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई मैटर नहीं। सो I इज इक्वल टू 1.2 10 raised to minus 5 एम्पियर। ये क्या करंट it pass through the coil. Coil deflects through an angle 30 degree. अगला सम, current of equal magnitude flows through the long parallel wires having the separation of 1.35 centimeter. दो parallel wires है, the wires are separated by a distance 1.35 centimeter. Current passing through wires is what? Same in magnitude. Current passing through the wire is what? Same in magnitude. So each wire becomes a source of magnetic field, and in that magnetic field the second wire experience the force. So this is how both the wires experience the force. If current passing through both the wires is in a same direction, forces acting on them are such that the coils attract each other. If current passing through them is in opposite directions, then forces acting on the coil are such that they repel each other. So what is the force per unit length acting on them is 4.76 into 10 raised to minus 2. ये small है force acting per unit length. तो आपको दोनों में से जो सेम मैग्नीट्यूड का करंट जा रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का F अपॉन L। आप F2 भी ले सकते हो क्योंकि दोनों पे एक्ट होने वाला फोर्स सेम होता है, फोर्स एक्ट होने वाला सेम होता है, खाली डायरेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। μ0 अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन D। उन्होंने बोला कि करंट पासिंग थ्रू बोथ द वायर इज सेम, सो I1 इज इक्वल टू I2, दैट इज इक्वल टू व्हाट I। ये होता है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ये हो गया है यहाँ पे। तो ये मैंने I स्क्वायर कर लिया है। तो F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I स्क्वायर अपॉन D। ये F का वैल्यू उन्होंने दिया है, μ0 अपॉन 4 पाई इज 10 पावर माइनस 7, 2I स्क्वायर इज रिक्वायर्ड, और D कितना है 1.35 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी I स्क्वायर के लिए राइट हैंड साइड लिखो,
तो 4.76 into 10 raised to minus 2, 1.35 10 raised to minus 2 प्रोडक्ट में आएगा, ये टोटल 10 पर माइनस 4 होगा अपॉन 2 इंटू 10 raised to minus 7. ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, 2 से डिवाइड करो और 10 पावर कलेक्ट करो. -4 + 7 ये हो जाएगा 3. दिस इज द करंट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लो. So this is the square root value. This is the current passing through each coil. अगर ये करंट दोनों वायर में से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, so both the wire experience the force of attraction. अगर दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो सोचो they experience the force such that they repel each other in opposite direction. So forces acting are towards each other when current passing through them is in same direction. And forces acting on them are away from each other when current passing through them is in opposite direction. Next, a rectangular coil of wire 100 turns and each turn has area 10 centimeters square hangs freely in radial magnetic field 0.02 Weber per meter square. When a current of 5 milliampere is passed through the coil is deflected through an angle of 60 degree. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये करंट पास किया, कॉइल 60 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ, तो आपको सस्पेंशन फाइबर का टॉर्सनल कांस्टेंट फाइंड आउट करना, यानी के. एकदम ऑनेस्ट न्यूमेरिकल है. ये देखो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, NAB अपॉन के इंटू आई. तो K इज इक्वल टू NAB अपॉन 5 इंटू आई, राइट. ये N है 100, ये एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ये मैग्नेटिक फील्ड है 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये करंट 5 मिली एम्पियर था, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. अब ये जो एंगल है हम लोग ये डिग्री में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. अगर मैंने ये एंगल डिग्री में सब्स्टिट्यूट किया तो K का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर पर डिग्री. अगर हम लोग 60 डिग्री की जगह π/3 रेडियन सब्स्टिट्यूट करते तो यूनिट आता न्यूटन मीटर पर रेडियन. तो व्हाइल राइटिंग द वैल्यू ऑफ K, यूनिट लिखते समय ध्यान दो, अगर आपने फाइ को डिग्री में सब्स्टिट्यूट किया यूनिट आएगा न्यूटन मीटर पर डिग्री. π/3 लेते तो यूनिट आता न्यूटन मीटर पर रेडियन, और आंसर न्यूमेरिकली भी चेंज हो जाता. सॉल्व करें. Now next, a rectangular coil of effective area 0.05 meter square is suspended freely in radial magnetic field. एक rectangular coil है, इसका effective area का मतलब including the number of turns. Area is denoted by capital A. Effective area is denoted by n times capital A. 0.05 meter square is suspended freely in radial magnetic field. Magnetic field है 0.01 Weber per meter square. If the torsional constant of suspension fiber is 5 into 10 raised to minus 9 Newton meter per degree. देखो ये पर डिग्री है तो एंगल डिग्री में ही लेने का. Find the angle through which the coil rotates. एंगल फाइंड आउट करना है तो आंसर डिग्री में, अगर फाइंड आउट करना है तो डिग्री में लेने का. When current of 300 microampere is passed through it. Okay, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन NAB अपॉन के आई. अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है, अगर ये डिग्री में फाइंड आउट करना है तो ये डिग्री में सब्स्टिट्यूट करो. तो NAB अपॉन के इंटू आई. व्हाट इज NA इफेक्टिव एरिया, ये 0.05. B कितना है 0.01. करंट कितना है 300 माइक्रो एम्पियर है, 300 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 अपॉन के कितना है 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9. तो ये अगर प्रोडक्ट लेंगे देखो ये 5 कट हो गया, खाली 3 बचेगा. सिंप्लीफाई कर लो, 30 डिग्री विल बी द आंसर. नेक्स्ट, a long straight parallel wires X and Y separated by a distance 2.5 centimeter in air
carries the current 5 ampere and 2.5 ampere. दो wires है X and Y. They are parallel to each other, straight one. They are 2.5 centimeter apart. ये small d है, दोनों में जो distance होता है. They are carrying the current 5 ampere and 2.5 ampere in the same direction. तो एक दूसरे को attract करेंगे. Calculate the magnitude and direction of force on 10 centimeter wire. Direction of a force on 10 centimeter wire of the length. तो पहले क्या करो, फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर लो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो फोर्स ऑन अ गिवन लेंथ आ जाएगा. इससे आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा. फिर 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लो तो फोर्स एक्टिंग ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर भी आ जाएगा. बहुत सिंपल है. ये देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ F2 अपॉन L भी ले सकते हो, F1 अपॉन L भी ले सकते हो. उन्होंने वायर Y पे पूछा है तो आप F2 ले लो. तो μ0 अपॉन 4 बाय F2 और F1 सेम होते हैं, राइट? पर यूनिट आई एम टॉकिंग अबाउट. पर यूनिट μ0 अपॉन 4 पाई, ये 10 पावर माइनस है 2. करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट वायर इज 5, करंट पासिंग थ्रू सेकंड वायर इज 2.5 and they are 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट. ये डी आ गया 2.5 10 to minus 2. ये सॉल्व कर लो, 1 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 are 10. ये 10 पावर माइनस 4. ये हो गया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर. दोनों पे एक्ट होने वाला फोर्स इतना ही रहेगा, सेम वायर. अभी उन्होंने बोला है कि वायर Y का लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा? कुछ नहीं, इसको 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर से मल्टीप्लाई कर लो. जो आंसर आएगा, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर. और वो कौन सा वायर है? Y. इसका लेंथ उन्होंने मेंशन किया. नेक्स्ट नंबर. A coil of area 5 centimeters square and having 100 turns is placed in uniform magnetic field. A coil of area 5 centimeters square and having 100 turns is placed in uniform magnetic field of 1.5 Tesla. Okay. Coil का area 5 centimeters square है. Coil has 100 turns. Magnetic field into which coil is suspended is 1.5 Tesla. करंट कितना फ्लो हो रहा है कॉइल में से? 1.5 एम्पियर पास थ्रू द कॉइल. आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है एंड मैक्सिमम टॉर्क एक्टिव. तो पहले टॉर्क फाइंड आउट कर लेते और मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट कर लेते और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी फाइंड कर सकते हैं. ओके. डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NIA. N इज 100, I इज 0.2, एरिया इज कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ये प्रिसाइज कर लो. ये आएगा 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये देखो, ये 5 2 are 10, मतलब ये एक्चुअली 1 हो गया. 100 इंटू 10⁻⁴, ये 10⁻² बचेगा. यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर, सो दैट आई केप्ट हियर. अब ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है. अभी इस टॉर्क का फॉर्मूला में वंस द कॉइल इज सस्पेंडेड, M और B नहीं बदलेगा. तो टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम ये कौन डिसाइड करता है? मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क इज डिसाइडेड बाय एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर. ये साइन थीटा. तो राइट हैंड साइड का वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा? इज 1. तो ये साइन 90 डिग्री होना चाहिए. तो साइन 90 डिग्री ले लो. सो लेफ्ट हैंड साइड को आप मैक्सिमम टॉर्क बोल सकते हो. सो हियर आई रोट दिस, टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क. M और B उन्होंने दिया ऑलरेडी, प्रोडक्ट ले लो. दैट इज द आंसर. ओके. नाउ in the next lecture we will continue the same chapter with one topic remaining, that is ampere circuit. Thank you.